Good morning, student. Welcome in your bio class. So today's topic we are discussing about endomembrane system. In endomembrane system, we have already discussed endoplasmic reticulum, endoplasmic reticulum in eukaryotic cell. It is a network or reticulum of the tiny tubular structure which we have already discussed. Endoplasmic reticulum show ribosome attach their outer surface, so it is called as RER, rough endoplasmic reticulum. Then if there is no ribosomes in their membrane, it is called SCR or smooth endoplasmic reticulum. After that we have discussed about Golgi apparatus. Golgi apparatus, this name is given by scientist Camillo Golgi in 1898 because he was first time he observed first time in cell it is densely stained reticular structure which is present near the nucleus. There was inner name Golgi bodies after that. So in Golgi apparatus, actually this is we have already discussed in previous videos. So the functions of Golgi apparatus is basically packaging material. क्या वर्क कर रहा है ये पैकेजिंग मटेरियल. सेकेंडली इट इज़ डिलीवर्ड either to intracellular target or secreted outside the cell. Material to be packaged in the form of vessels from the ER fused with the cis phase of Golgi apparatus and move towards the maturing phase. So that's the reason Golgi apparatus remain a close association with the endoplasmic reticulum. एंड मीन्स Golgi apparatus काफ़ी क्लोज है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से because the number of proteins synthesized by ribosomes on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of Golgi apparatus. बहुत सारे प्रोटीन सिंथेसिस होता है राइबोसोम्स में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऑलरेडी रहते हैं. ठीक है. और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वो जो सिस्टर्नी है वो Golgi apparatus के सिस्टर्नी के जैसे ही क्या है मॉडिफाइड हैं बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांस फेज. Golgi apparatus इज द इम्पोर्टेंट साइट द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स. Golgi apparatus में क्या बन रहा है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स. नाउ lysosome. Lysosome basically it is a membrane bound vesicular structure formed by the process of packaging in Golgi apparatus. Lysosome भी एक membranous structure है जो वेसिकल्स जो membranes जिसके चारों तरफ एक membrane होती है. ठीक है. और ये कैसे फॉर्म हो रहा है Golgi apparatus के पैकेजिंग. जो Golgi apparatus जब बनता है तो उसकी पैकेजिंग के थ्रू ये लाइजोसोम भी फॉर्म होते हैं. द आइसोलेटेड लाइजोसोमल वेसिकल्स हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स. हाइड्रोलेज मीन्स लाइपेज और प्रोटीज और कार्बोहाइड्रेट. ये तीन तरीके के ऐसे एंजाइम्स हैं जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं. तो लाइजोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं. ऑप्टिमली एक्टिव इन द एसिटिक पीएच जो कि एसिटिक मीडिया पर एक्टिव होते हैं. पीएच मतलब बिफोर लेस देन 7 एसिटिक मीडिया. ठीक है. एसिडिक मीडिया होता है एसिडिक पीएच. इस पे ही ये फंक्शन करता है. ये एंजाइम फंक्शन करता है और दीज एंजाइम्स आर कैपेबल टू डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड. इसलिए लाइजोसोम एक डाइजेशन के लिए भी हेल्प करता है और इट इज़ कॉल्ड एज सुसाइटल बैग. इसके बाद आता है वैक्यूल्स. Vacuoles is also membrane bound space found in the cytoplasm of a plant cell. It's contain water sap, excretory product and other material which is not useful for the cell. कभी कभी आता है what is the components of the cell.
सैप, तो कंपोनेंट्स ऑफ द सैप में आप ये लिखोगे, इट इज़ प्रेजेंट इन वैक्यूल्स एंड इट इज़ basically present in plant cell cytoplasm. It's contain water, sap, excretory product and other material which is not useful for the cell. The vacuole is bound by a single membrane called tonoplast. Tonoplast का अलग से एक शॉर्ट नोट्स आता है, टोनोप्लास्ट. तो टोनोप्लास्ट क्या है? वैक्यूल्स जब सिंगल लेयर से सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड अप होती है तो ये टोनोप्लास्ट होती है. इन प्लांट सेल वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाइड 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल. इन प्लांट्स द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट. टोनोप्लास्ट का फंक्शन है, functions of tonoplast. In plant, the tonoplast facilitated the transport of a number of ions and other material against concentrate gradients into the vacuoles. Concentrate gradients into the vacuoles का मतलब ये हुआ कि concentration gradients के अपोजिट, मतलब हायर concentration to lower concentration to higher concentration, lower concentration to higher concentration. Hence their concentration is significantly higher in the vacuoles. इसलिए इनका जो concentrations रहता है हायर इन द वैक्यूल्स दैन इन द साइटोप्लाज्म. वैक्यूल्स में बहुत ज़्यादा है साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में. इन अमीबा इसी की जगह पर अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है और फूड वैक्यूल्स होती है जो इसी तरीके से फूड पार्टिकल्स को एनगल्फ करती है. तो ये अमीबा में इसका वर्क क्या है, वैक्यूल्स का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है और वो फूड वैक्यूल्स के तरीके से वर्क करती है. नेक्स्ट सेलुलर ऑर्गेनेल्स इज माइटोकॉन्ड्रिया. सेलुलर nails. Cellular organelles, mitochondria. Mitochondria in singular form it is called as mitochondrion. Unless specifically stained, are not easily visible under the microscope. The number of mitochondrion per cell is variable. माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर हर सेल में अलग होता है, डिपेंड करता है उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ पर. जो सेल को ज़्यादा वर्क करना होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है. इन टर्म ऑफ शेप एंड साइज ऑल्सो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज़ ऑब्जर्व. और उसी के हिसाब से उसकी साइज़ भी और कितना नंबर है, शेप और साइज़ दोनों वेरिएट करते हैं. तो सेल को ज़्यादा वर्क करना है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया काफ़ी ज़्यादा होंगी, उसका शेप और साइज़ भी उसी के अकॉर्डिंग इफ़ेक्ट करेगा. टिपिकली इट इज़ सॉसेज शेप्ड और सिलिंड्रिकल हैविंग डायमीटर ऑफ 0.2 to 1 QUM, average 0.5 μm and length 1.041 μm. Each mitochondria is a double membrane structure. कभी कभी आता है राइट द नेम ऑफ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स. तो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया. ये इसका जो इनर फोल्ड है, इनर फोल्ड इट इज़ कॉल्ड क्रिस्टी और ये स्पेस है. दिस वन इज आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच की ये स्पेस है. इनर मेम्ब्रेन जो एक फोल्ड के फॉर्म पर हो जाती है, दिस इज़ कॉल्ड एज क्रिस्टिया. ठीक है. और इस पर छोटे छोटे से वो एंजाइम्स होते हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं. तो इट इज़ द फिगर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. क्लियर. आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन डिवाइड बाय ल्यूमन. दोनों, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है और इसके बीच में ये ल्यूमन है, कैविटी है. इसमें क्या है, 2 एक्वस कंपार्टमेंट. ये इसमें 2 एक्वस कंपार्टमेंट है, आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट. दिस वन इज आउटर कंपार्टमेंट और ये इनर मेम्ब्रेन का ये क्या है, इनर कंपार्टमेंट. The inner compartment is filled with a dense homogeneous substance called matrix. इसमें ये इसका जो दिस वन ये जो फिगर है ये मैट्रिक्स है. इनर कंपार्टमेंट मैट्रिक्स होता है
ठीक है। और आउट देन outer membrane form a continuous limiting boundary of the organelles. The inner membrane forms in fold called cisternae. inner membrane ये cisternae form कर रही है, fold like structure. ये क्या form कर रही है? क्रिस्टिया. It is called as क्रिस्टिया और क्रिस्टा टुवर्ड्स द मैट्रिक्स. किसकी साइड पर? मैट्रिक्स की साइड पर. ये जो लेयर है ये मैट्रिक्स है. आउटर और इनर कंपार्टमेंट के बीच में क्या है? मैट्रिक्स है. द टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स एसोसिएट विथ अ माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन. इसी में एंजाइम्स होते हैं. इनर कंपार्टमेंट में क्या होते हैं? एंजाइम्स. और ये एंजाइम्स क्या कर रहे हैं? फंक्शनिंग में. मतलब रेस्पिरेशन. कौन सा रेस्पिरेशन? इंट्रासेल्युलर रेस्पिरेशंस में ये एंजाइम्स हेल्प करेंगे. इट विल बी हेल्प इन इंट्रासेल्युलर रेस्पिरेशन, जो मैट्रिक्स में जो एंजाइम्स हैं. द Christy increase the surface area. What is the function of Christy? This one Christy increase the surface area and it is helpful in the respiration. ठीक है. माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन में हेल्प कर रही है. माइटोकॉन्ड्रिया फोल्डिंग कॉर्ड Christy. The Christy increase the surface area. Two membrane have their own specific enzymes associated with a mitochondrial. जो enzymes हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन में हेल्प कर रहे हैं. माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. ये आपने इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन जो लिखा ना, ये कैसा है? एरोबिक. क्यों एरोबिक है? बिकॉज इट इज गोइंग ऑन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. क्लियर. दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी. और इनका काम क्या है? सेल को एनर्जी प्रोवाइड, सेल्यूलर एनर्जी देते हैं. सेल्यूलर एनर्जी जिससे सेल फंक्शन कर सकती है. They produce cellular energy in form of ATP, so it is called powerhouse of the cell. That's the reason mitochondria is called powerhouse of the cell. The matrix also possesses single. इसमें क्या है? एक और important thing, DNA molecules is also present. Mitochondria contain their own DNA. वो DNA कैसा है? सिंगल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल. DNA. क्लियर. तो माइटोकॉन्ड्रिया की स्पेशलिटी है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड इट हैज़ कंटेन देयर ओन DNA. नाउ नेक्स्ट वन इज प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? प्लांट सेल और इग्लोइड्स में. ठीक है. एल्गी में भी स्पेशली. एल्गी आप लोगों को पता है ना कि एल्गी का जो क्लासिफिकेशन है वो प्लास्टिड्स के अकॉर्डिंग ही किया है. ग्रीन यदि प्लास्टिड्स है ग्रीन एल्गी, रेड प्लास्टिड्स रेड एल्गी. तो इसलिए ये लिया है कि इट इज़ बेसिकली प्रेजेंट इन प्लांट सेल और स्पेशली इन एल्गी. दे आर ईजली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप में ईजली ऑब्जर्वेबल है. इट्स वेयर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स. हाँ, अंदर क्या है इसमें? स्पेसिफिक पिगमेंट्स. ये पिगमेंट्स जो स्पेसिफिक कलर्स देते हैं प्लांट्स को. द टाइप ऑफ द पिगमेंट्स प्लास्टिड्स कैन बी डिवाइड इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. प्लास्टिड्स को 3 में डिवाइड किया है. क्लोरोप्लास्ट के बाद आ गया क्रोमोप्लास्ट, और थर्ड ल्यूको वो है जिसमें कोई कलर नहीं है. क्रोमो मतलब कलरफुल और क्लोरो मतलब ग्रीन कलर. ये ग्रीन कलर के लिए ये कलरफुल. कोई भी कलर हो सकता है क्रोमोप्लास्ट में. रेड कलर हो सकता है, येलो कलर हो सकता है. इट इज़ प्रेजेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स. और ल्यूकोप्लास्ट मीन्स ट्रांसपेरेंट, नो कलर. द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल. क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है. कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट, क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड्स. ठीक है. और इसका काम क्या है क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स का? टू हेल्प इन फोटोसिंथेसिस. द क्रोमोप्लास्ट कंटेन कैरोटीनॉइड्स. क्रोमोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट है? कैरोटीनॉइड्स. इट इज़ फैट सॉल्युबल. क्लियर. और इसके अलावा इसमें कैरोटीन, ज़ैंथोफिल भी प्रेजेंट है.
क्लियर है। ये प्लांट्स को ये येलो, ऑरेंज और रेड कलर देता है। क्रोमोप्लास्ट में कैरोटीनाइड, xanthophyll, it is carotenoid xanthophyll already present and it gives yellow, orange or red color of the plant. The leucoplast is the colorless plastids. leucoplast कैसा है? colorless है, जस्ट लाइक स्टार्च। एग्जाम्पल्स इसमें ल्यूकोप्लास्ट में आ जाएंगे। ये डिफरेंट शेप एंड साइज के हैं और कई तरीके के न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करते हैं। फर्स्ट इसमें अमाइलोप्लास्ट, इट्स स्टोर कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च। अमाइलोप्लास्ट किसका पार्ट है? ल्यूकोप्लास्ट का। इट्स कंटेन कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च। पोटैटो में इलियोप्लास्ट, इसमें ऑयल कंटेंट्स हैं और फैट है। ठीक है, ये आपको इंडिपेंडेंटली लर्न करना है स्टूडेंट की कौन सा है। ल्यूकोप्लास्ट में बेसिकली क्या है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट में क्या है, क्लोरोफिल में क्या है। क्रोमोप्लास्ट का ऑरेंज रेड और कलर क्यों आ रहा है? इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ कैरोटीनाइड, xanthophyll, लाइक दैट। तो ये जो इतना सा पार्ट है, इट्स फॉर्म मैनी क्वेश्चंस। तो आप इसको इंडिपेंडेंटली टर्म्स वाइज क्लियर करोगे। तो अमाइलोप्लास्ट में अमाइलोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट इट इज़ इंक्लूड इन ल्यूकोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट में क्या है? प्रोटीन। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, वेयर प्रोटीन्स आर स्टोर। प्रोटीन आर स्टोर इन एल्यूरोप्लास्ट, फैट इज स्टोर इन एलियोप्लास्ट, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट स्टोर इन अमाइलोप्लास्ट एंड दीज ऑल आर इंक्लूड इन ल्यूकोप्लास्ट। लाइक कैरोटीनाइड्स गिव्स अ येलो ऑरेंज कलर, ठीक है। कैरोटीनाइड्स, xanthophyll, येलो कलर। तो ये क्रोमोप्लास्ट के पार्ट्स हैं। अब नाउ वी विल रीड डिटेलिंग ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की हमको डिटेल रीड करना है बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट इन फोटोसिंथेसिस में। तो क्लोरोप्लास्ट किस फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। दैट्स अ रीज़न वी शुड नो डिटेलिंग or detailed informations about chloroplast. Chloroplast is a green, it is already present in green plants and it gives green color. ये जनरली कहाँ होता है? प्लांट्स की लीव्स की मेसोफिल सेल्स में। लीव्स का जब आप एक स्ट्रक्चर देखते हो, ठीक है, लीव्स का एक स्ट्रक्चर देखते हो तो कैसा दिखाई देता है? लीव्स में एक आउटर लेयर होती है, एक इनर लेयर होती है, ठीक है। ये अपर एपिडर्मिस, दिस वन इज लोअर एपिडर्मिस, इसके बीच में ये मीजोफिल सेल्स होती हैं। और ये मीजोफिल सेल्स जो होती हैं इट इज़ रिच इन क्लोरोप्लास्ट। मीजोफिल सेल्स, दिस टर्म इज ऑलरेडी गिवन, मीजोफिल सेल ऑफ द लीव्स इज रिच इन chloroplast. The structure of each chloroplast looks like that. ये क्लोरोप्लास्ट का एक सेक्शनल व्यू है। इट इज़ आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, एक उसको ग्रेनम कह रहे हैं और ग्रेनम का जो पूरा ग्रुप है इट इज़ कॉल्ड एज थैलेकॉइड। और ये ग्रेनम को छोड़कर जो पार्ट लीव्स का है इट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रोमा लैमिली, ये स्ट्रोमा लैमिली है। और ये जो इसका इनर पार्ट है इट इज़ ग्रेनम, ये ग्रेनम और ये स्ट्रोमा। ग्रेनम में कौन सी रिएक्शन हो रही है? इट इज़ लाइट रिएक्शन और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन। तो इसलिए लैमेला और स्ट्रोमा दोनों इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, क्लियर। और इसका भी नंबर जो होता है अलग अलग सेल में अलग होता है। प्लांट सेल में इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है। इट इज़ लेंस शेप्ड, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड, इवन रिबन शेप्ड, रिबन लाइक स्ट्रक्चर हैविंग वेरिएबल लेंथ 5 से 10 mm, ब्रेथ 2 से 4 mm. देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 1 per cell इन क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास जो एक सिंगल सेल एल्गी है ना, सिंगल सेल एल्गी है। और इसमें का जो ग्रीन एल्गी है 20 से 40 पर सेल होता है। मीजोफिल में 20 से 40 पर सेल होता है, ठीक है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का फर्स्ट सिमिलर कैरेक्टर क्या है? बोथ आर डबल मेम्ब्रेन bound into inner chloroplast membrane relatively. It is less permeable. The space limited by the inner membrane of the chloroplast is called stroma. We have already discussed stroma. Dark reaction. The number of organized flatted membranes is called thylakoid are present in stroma. Thylakoid arranged in a stag.
ये थैलेकॉइड्स हैं, दिस ऑल आर थैलेकॉइड्स। किस फॉर्म पर है ये? इट इज़ अरेंज्ड इन स्टैक फॉर्म, STSC के स्टैक फॉर्म, एक के ऊपर एक जैसे रख देते हैं, ठीक है। लाइक अ पाइल्स ऑफ द कॉइन्स कॉल्ड ग्रेना, जैसे एक सिक्के को दूसरे सिक्का, दूसरे सिक्के को तीसरे सिक्का कैसे रखे, तो इट इज़ पाइल्स ऑफ कॉइन्स फॉर्म करता है। और वही ग्रेना का स्ट्रक्चर पाइल्स ऑफ कॉइन्स के जैसा होता है। और इंट्रिकल थैलेकॉइड्स, और ये क्या बनाता है? थैलेकॉइड्स फॉर्म करता है। फ्लैट मेम्ब्रेन, डबल flat membrane tube like structure is called stroma, lamellin covering the thylakoids of the different grana. This membrane is the thylakoid enclosed a space called lumen. इसकी बीच की जो स्पेस होती है ल्यूमिन होती है। स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। स्ट्रोमा में कौन से एंजाइम्स हैं जो डार्क रिएक्शन में यूज़ हो रहे हैं? किस में यूज़ हो रहे हैं? डार्क रिएक्शन में। स्ट्रोमा के एंजाइम्स किस में यूज़ होते हैं? डार्क रिएक्शन में, ठीक है। डार्क रिएक्शन में यूज़ होते हैं वो सब स्ट्रोमा में एंजाइम्स, और ग्रेना में वो एंजाइम्स हैं जो लाइट रिएक्शन में यूज़ हो रहे हैं। सेकेंड, इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन, इट्स कंटेन स्मॉल double strand circular DNA molecules or ribosome. Means what is the similarity between plasmids or mitochondria? Near about same plasmids. इसमें respiration हो रहा है, उसमें भी respiration, माइटोकॉन्ड्रिया में भी respiration और इसमें भी respiration हो रहा है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ना होकर डिक्टियोसोम होते हैं प्लांट्स में। क्लियर? क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर present in thylakoid. The ribosome of the chloroplast are smaller 70s. इस क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल के जैसे हैं 70s, और साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम 70s 80s। तो ये देखो, ये एक बेसिक डिफरेंस है। जो क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल के जैसे हैं, जबकि क्लोरोप्लास्ट का जो साइटोप्लाज्म है वो चूँकि यूकैरियोटिक सेल का साइटोप्लाज्म है तो उसमें 80s है राइबोसोम्स। 80s आप लोगों ने रीड किया था ना, राइबोसोम्स दो तरीके से होते हैं, 70s 80s। 70s जो होते हैं बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं, 80s यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। तो ये दिस इज़ द बेसिक और डिटेल ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। आप इसका स्ट्रक्चर के साथ, लेबलिंग के साथ इसका डायग्राम लर्न करके रखोगे एंड यू विल प्रैक्टिस सो मैनी टाइम्स टू मेकिंग इट्स डायग्राम। नेक्स्ट वन आता है राइबोसोम, साइटोस्केलेटन एंड लास्ट प्लास्टिड क्लियर हो चुका। राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, cilia and flagella, centrosome, centrioles. This we will discuss in next video. I think student, hope you have understood this all points. Okay student, have a nice